Secretary General, may please call out the name of those honorable members who have not yet taken oath or affirmation. Please. Ms. Vanshika, who stands from Surat constituency of Gujarat, now will take oath or affirmation. Ms. Vanshika, please. Ma'am, would you like to take oath or affirmation? Oath, English language? Proceed, please. अहम पंचिका युवा संसदस्य सदस्यापि पात्रता भवामि अहम ईश्वरस्य शब्दं गृह्णामि तथा सत्ये निष्ठाया सह प्रतिज्ञा करोम्यहम् यत् विधिना स्थापित भारतस्य संविधानं प्रति श्रद्धा निवासामि तथा यः पदम् अहं गृह्णामि तस्य कर्तव्यस्य श्रद्धा सह पालयिष्यामि धन्यवाद Now, Mr. Randall, who stands from Kurukshetra University of Haryana, will now take oath or affirmation. Sir, would you like to take oath or affirmation? Oath, please. In which language? Hindi. Proceed, please. मैं प्रांजल जो युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ ग्रहण करता हूँ तथा निष्ठा सहित प्रतिज्ञा करता हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगा तथा जो पद मैं ग्रहण करूंगा उसके कर्तव्य का निष्ठा सहित पालन करूंगा धन्यवाद Honorable members, as we meet today, it is my sacred duty to inform the House of the dismissed Mulayam Singh Yadav. He was an Indian politician, a socialist figure, and the founder of Samajwadi Party. He served 3 non-consecutive terms as the Chief Minister of Uttar Pradesh and also served the Minister of Defence, Government of India. A long-time parliamentarian, he was the Member of Parliament representing the Manipuri constituency in the Lok Sabha and earlier had also represented the Azamgarh, Sabhal and Kannauj constituencies. Honorable members, as we meet today, it is my sacred duty to inform the House of dismissed Mulayam Singh Yadav. He was an Indian politician, a socialist figure, and the founder of Samajwadi Party. He served 3 non-consecutive terms as the Chief Minister of Uttar Pradesh and also served as the Minister of Defence, Government of India, a long-time parliamentarian. He was a member of parliament representing the Manipuri constituency in Lok Sabha and earlier had also represented the Azamgarh, Sabhal and Kannauj constituencies. With a political career spanning more than 6 decades, being elected as the Member of Parliament MP for 7 times and the Member of Legislative Assembly MLA for 10 times.
the Vertian politician, was a prominent figure of his time in Indian politics. He was oftenly referred as a Netaji, representing respected leader in India by party leaders and workers. Thank you. मैं श्री मुलायम सिंह यादव के महोदया, मैं श्री मुलायम सिंह यादव की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हम सभी को उन्हें बहुत निकट से जानने का अवसर प्राप्त हुआ, अतः मैं यह कह सकती हूँ कि उनके जाने से सदन को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई मुश्किल ही नहीं वरन असंभव है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान बखूबी संभाली और देश के रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने इस सदन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। संसद की कार्यवाही में शामिल होकर उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय हम सभी को दिया है। वे एक खुशदिल एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। उत्तर प्रदेश का एक ही नेता मुलायम सिंह यादव, popularly known as Netaji in Uttar Pradesh, the head of the family, ruled by leaders such as Ram Manohar Lohia and Das Narayana. Yadav was first elected as a member of Legislative Assembly in Uttar Pradesh in 1967. Yadav served 8 terms there in 1975. During Indira Gandhi imposition of the emergency, Yadav was arrested and kept in the custody of 19 months. He first became a state minister in 1977. Later in 1980, he became the president of the Lok Dal in Uttar Pradesh, which he became the part of the Janata Dal afterwards in 1982. He was elected as the leader of the opposition in Uttar Pradesh Legislative Council and held that post until 1985. When the Lok Dal party split, Yadav launched the Krantikari Morcha party. Thank you. The House may stand in silence for a while to express our sorrow. Secretary General, may please convey a message of condolence to the bereaved family. Sit down, please. Now, I would like to call Prime Minister to introduce new minister. Please. Madam Speaker, I have pleasure in introducing to you and through you to the House my colleague, the new minister, Ms. Jaspreet, Minister of Information Technology, Mr. Aman, Minister of Tourism, and Ms. Nancy, Minister of External Affairs. Now, our question hour starts with the question number 51, Ms. Priya, please. माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, बताने का कष्ट करेंगे कि मार्च 2020 से देश में कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों की राजस्थान संख्या कितनी है? क्या केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष NDRF से वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना बनाई है? तो यदि हाँ, तो तब संबंधित ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? तो क्या उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान की दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो यदि हाँ, तो तब संबंधित ब्यौरा क्या है? Health Minister, please. Honorable Speaker, ma'am, A. As embodied by the states and union territories on the portal of Minister of Health and Family Welfare, 4,67,468 persons have died due to COVID-19 in the country from March 2020 up to 26 November 2021. The states and union territories wide details are available at their website at www.mohfw.gov.in under the head COVID-19 state by status.
B2E. In pursuance of the Honorable Supreme Court judgment dated 30th June 2021 in the Red Petition Serial number 554 and number 539, the National Disaster Management Authority NDMA under the Section 12(3) of Disaster Management Act 2005 had issued guidelines on the 11th September 2021 for grant of ex gratia assistance of rupees 15,000 per deceased person, including those involved in a relief operation or associated in the pre-partner activities. Subject to cause of death being certified as COVID-19 as per the guidelines for official document for COVID-19 death jointly issued by the Ministry of Health and Family Welfare and Indian Council of Medical Research on the 3rd September 2021. The Honorable Supreme Court whipped its order on the 4th October 2021 in Maceration Application number 1120 of 2021 in the Red Petition Serial number 539 titled as Gaurav Kumar Bansal vs. Union of India inter alia issued details instruction regarding fixed timelines for insurance of ex gratia payment, setting up of grievance medical community, etc. In compliance with the aforesaid order, the Minister of Home Affairs on the 6th October 2021 has requested all states and union territories to take necessary action as completed in the said judgment and guidelines issued by the rewarded by the Government of India and NDMA immediately and within the stipulated time. यही नहीं महोदया, हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला भी लिया है। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को कोविड महामारी के दौरान खो दिया है, उन बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सरकार उच्च कदम उठाएगी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 52 हमारी खुशी। महोदय, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस मंत्री बताने की चेष्टा करेंगे कि क्या सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी को बेचने जा रही है? यदि हाँ, तो फिर पेट्रोलियम पदार्थों जैसे पेट्रोल, डीजल व एलपीजी कीमत का निर्धारण कैसे होगा? धन्यवाद। पेट्रोल व प्राकृतिक गैस मंत्री। महोदय, सरकार पेट्रोल पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने जा रही है, परंतु डीजल तथा एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाने वाली सब्सिडी को केवल कम किया जा रहा है। इन्हें पूरी तरह से समाप्त करने का सरकार का अभी कोई इरादा नहीं। महोदय, हमारे यहाँ अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतें सरकार तय करती रही है। इस तरह कीमतों पर पेट्रोलियम पदार्थ बेचने वाली कंपनियों का नियंत्रण नहीं, सरकार का नियंत्रण था। ऐसा आम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के असर से बचाने के लिए किया गया। तेल कंपनियां आयात के बाद कच्चे तेल को साफ करने में आई लागत, धुलाई खर्च, पूंजीगत खर्च, लेबर कास्ट और रिफाइनिंग में नष्ट हुए कच्चे तेल की लागत जोड़कर कीमत तय करती है। इसे रिफाइनरी गेट कीमत कहते हैं। इसके बाद एक्साइज ड्यूटी, वेट, डीलर का कमीशन, शिक्षा पर राजमार्ग कर मिलाकर पेट्रोल पदार्थ की अंतिम कीमत तय होती है। जब कच्चा तेल महंगा हो जाता है तो रिफाइनरी गेट कीमत बढ़ जाती है। अब तक सरकार पेट्रोल कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुताबिक कीमत तय नहीं करने देती थी। सरकार ऑयल ब्रांड को सब्सिडी देकर कीमत के अंतर की भरपाई करती थी, जिसके लिए सरकार को हर वर्ष लगभग 3,000 करोड़ रुपए सहन करना पड़ता था। लेकिन अब पेट्रोल की कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत के साथ जोड़ दिया गया है और डीजल पर भी सब्सिडी की सीमा तय कर दी गई है। इससे सरकार अपने ऊपर बिना वजह पड़ने वाले खर्च के भार को काफी हद तक सहन कर सकती है। धन्यवाद महोदय। महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि सरकार आम लोगों को पेट्रोल कीमतों में बढ़ने से होने वाली परेशानी से बचाने के लिए
सरकार आए दिन लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में केरोसिन की कीमतें बढ़ाती रही है और अब पेट्रोल कंपनियों पर कीमतों को छोड़ा जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या अब आम आदमी की सरकार को कोई चिंता नहीं है तथा उस पर इससे जो बोझ पड़ेगा उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है। महोदय, मेरे विद्वान साथी ने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा कि डीजल, केरोसिन तथा एलपीजी सिलेंडर पर से सब्सिडी को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है, उनकी केवल एक सीमा तय की गई है। साथ ही मैं अपने साथी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि सब्सिडी के लिए दिया जाने वाला धन भी आप लोगों के टैक्स से ही आता है। सरकार ने 2008 से 2009 में केरोसिन पर 969.14 करोड़ और रसोई गैस पर 1707 करोड़ की सब्सिडी दी है। मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहती हूँ कि रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी का 60% सबसे अमीर 30% तबके को मिलता है तथा ग्रामीण इलाके के सबसे गरीब 40% तबके को रसोई गैस सब्सिडी का सिर्फ 0.6% मिलता है। अतः गरीब आदमी तक सुविधा पहुंचे, इसके लिए हमें कीमतों में मामूली वृद्धि करनी पड़ती है और हमें अपनी आवश्यकता का 80% कच्चा तेल विदेशों से आयात करना पड़ता है, जिसके लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। अतः सरकार ने देश के दुर्गामी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। महोदय, एक तरफ तो मंत्री जी कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करके वह कच्चा तेल विदेशों से आयात कर चुके। दूसरी तरफ यह सुनने में आया है कि देश से हजारों टन पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या यह सही है? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपया करेंगे कि वह यह उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं? कभी कभी हमने यूं ही अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया। महोदया, पिछले वर्ष कच्चे तेल का देश में कुल भंडारण 12.36 करोड़ टन था, जिसमें से देश के अंदर कुल उत्पादन केवल 3.36 करोड़ था तथा 9 करोड़ टन कच्चा तेल विदेशों से आयात करना पड़ा, जो कि हमारी मांग का 80% है। दरअसल बड़े पैमाने पर कच्चे तेल के आयात करने का यह कारण है कि हमारी रिफाइनरी की क्षमता हमारी जरूरत से ज्यादा है और हम अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात में करते हैं। बीते साल हमने 36,940,000 टन पेट्रोल पदार्थों का निर्यात किया। यदि हम इसी तरह रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाते रहे तो जल्द ही हम पेट्रोल पदार्थों के पूरी तरह निर्यातक देश हो जाएंगे। मौजूदा हालात में हम विश्व के 5वें सबसे बड़े रिफाइनर हैं। हमारे रिफाइनरी हब बनने का एक बड़ा कारण यह है कि हमारे यहाँ रिफाइनरी स्थापित करने की लागत अन्य एशियाई देशों के मुकाबले 25 से 50% तक कम है। हमारी कोशिश है कि हम पेट्रोल पदार्थों को कच्चे तेल से निकलने वाले अन्य पदार्थों का निर्यात इतना बढ़ा ले कि कच्चे तेल के आयात का बोझ बहुत कम रह जाए। और मुझे इस सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 साल में यह लक्ष्य हासिल हो सकता है। धन्यवाद महोदया। Question number 53, Miss Nikita, please. Honorable Speaker, question number 53. To the Minister of Education Minister, we please to tell about few of his public proposals which have drawn maximum attention. The first one is the idea of making the class-based board exam optional. He said in a press conference that he is going to do it because government wants to decommoditize education. But let me put it to you that the exam are not the real cause of growth. The real cause of growth is competitive
but the cut-off is getting higher and at the top of that is the parental threshold. Are you not targeting the bronchosum trauma? मैं अपने साथी से ये पूछना चाहती हूँ कि बोर्ड ऑप्शनल कर देने से क्या वाकई समस्या का हल हो सकता है? डी. दूसरा बड़ा proposal. The second big idea that is drawn up and which have attracted a lot of attention is the idea of uniform single national boarding class bill. Now the problem is that Professor Yatpal says these are not his recommendations and more important. He adds, I cannot understand how we can talk about standardizing syllabus and updated content across the country. पूरे देश में यूनिफॉर्म कंटेंट कैसे और कितने दिनों में लागू करेंगे? धन्यवाद महोदय। Education Minister, please. Honorable Speaker Ma'am, I would like to tell my friends that we are rightly focused. If you look at my press release of recent conference held on 25th June, it says that I will start the process of reforming examinations in the context of National Education Policy 2020. So it ignores the board. The entire approach of teacher to education as well as a move away from exam to grades and a continual assessment will take place so that the stress on students could be reduced. बच्चों के नन्हे हाथों को आप चांद सितारे छूने दो, वरना तो किताबें पढ़कर ये हम जैसे हो जाएंगे। धूप में निकलो, घटाओं से नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों के परे भी देखो। The national curriculum is already in place, which suggests all these things, but implementation will take place. So, within a year, class 10 board exam could become optional. There is a real possibility. Then coming to the next query of yours, there is a lot of diversity in our country. So, as you move along the school system, it says, as you move along the school system, each state and each board is entitled to lay focus on certain issues. When you come to class 12, there is no regional diversification in subjects like physics, chemistry, mathematics, English literature. Uniformity here doesn't mean uniformity in teaching. Uniformity means uniformity in standard. It requires uniformity of syllabus and content. Thus, it's a long-term goal, but I believe in it. Thank you. With the kind permission of Honorable Speaker, I would like to say that the Education Minister didn't say much about right to education bill in his conference. तो कृपया करके बताएंगे कि आप इसमें शिक्षा संबंधी मुद्दों पर क्या काम करेंगे? Honorable Speaker, right to education not only guarantees right to education, it has to done with improving the standard of education and schools. Here we have a concept of neighborhood schools which suggests all these where there will be a school in every habitation. This is very close to a specific part of our party's manifesto. The second commitment here is quality training for teachers and improving the physical environment in school. Thank you. Question number 54, Mr. Maya, please. महोदय, आपकी सरकार ने 2019 में आर्टिकल 370 को हटाकर यह नारा बड़े जोर शोर से दिया था कि हम भारत को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं तथा घाटी के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर को उपलब्ध करवाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 2014 से लेकर अब तक जम्मू और कश्मीर में रोजगार दर का जिलावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है? अगस्त 2019 से लेकर अब तक सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सृजित नई नौकरियों का ब्यौरा क्या है? वर्ष 2022 तक 25,000 रोजगार सृजित करने के सरकार के लक्ष्य की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है और यदि हाँ तो इसके क्या कारण है तथा इसकी संशोधित समय सीमा क्या है? धन्यवाद। Home Minister, please.
महोदय, मुझे यह बताते हुए आपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारी सरकार न केवल नारे देती है, अपितु उस पर कार्य भी करके दिखाती है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने वर्ष 2019 में 29,806 सार्वजनिक क्षेत्रों की भर्ती की है। इसके अतिरिक्त अगस्त 2019 से जून 2022 तक स्वरोजगार योजना के माध्यम से 5.20 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने का अनुमान है। Honorable members, I have to make an announcement. On my own behalf of honorable members of the House, I have a great pleasure in extending our warm welcome to the honorable members of the British Parliamentary delegation who are on a visit to India as our honored guests. Mr. Francis Drosto, Mr. John Ford, and Mr. Deligovano. Now, non-confidence motion starts. आज सदन में विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की गई थी। मुझे 9 सांसदों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें से मैं कुमारी सृष्टि को सदन में अविश्वास प्रस्ताव रखने की अनुमति देती हूँ। कुमारी सृष्टि अपना प्रस्ताव सदन में रखे। मैं सदन की अनुमति से अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हैं, कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन में यह प्रस्ताव करती हूँ कि क्या यह सदन मंत्री परिषद में अपना अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे यह अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा दी। मैं आपको व सदन को यह बताना चाहती हूँ कि आज जो देश की परिस्थितियां बन गई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम यह अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ ला रहे हैं। इसकी आवश्यकता इस देश को थी और देश के नुमाइंदे होने के नाते हमारे यह फर्ज बनता है कि सरकार से पूछे और सरकार इसका अगर जवाब न दे पाए सदन को संतुष्ट न कर पाती तो उसे बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। महोदय, सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिनों दिन बढ़ती हुई महंगाई की ओर दिलाना चाहती हूँ कि देश में कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें महंगाई के कारण 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। कड़ी मेहनत जो अपनी मूलभूत आवश्यकता को ही पूरा नहीं कर पा रहा है। गरीब की तो बात ही क्या है, की भूख की तरह बढ़ती जा रही है। सरकार ने भी महंगाई के आगे हथियार डाल दिए हैं। एक तरफ तो हम देश देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति 10, 12, 15% और आगे बढ़ती जा रही है। खाद्य पदार्थों के दामों में 220% की हो रही है और दूसरी तरफ सरकार देश में महंगाई के कारण बिगड़ते हालात से बेखबर चैन की नींद सो रही है। इस बारे में कोई प्रयास नहीं हो रहा है। क्या सरकार के पास इस समस्या का कोई जवाब है? मैं जानती हूँ कि सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। यदि सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है तो क्यों ना मैं यह जवाब ऑक्टोपस बाबा बोर्ड से ही पूछ लूं। कुमारी सृष्टि, कृपया अपनी बात जल्दी समाप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं जानती हूँ कि सदन का वक्त कितना कीमती है और इसे व्यर्थ नष्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, परंतु इससे भी ज्यादा कीमती देश की गरीब जनता की जान है। महोदय,
और बात सिर्फ महंगाई की ही नहीं, अभी तो हर मोड़ पर सरकार का रवैया ऐसा ही है, जिसके कारण आज इस देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। इसलिए आज सरकार को सदन में यह जवाब देना ही होगा। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस जमाने से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह तस्वीर बदलनी चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि मेरे द्वारा सदन में रखे गए अविश्वास प्रस्ताव को सदन का समर्थन प्राप्त होगा और इसे सरकार को जवाब देना ही होगा। Yes, Food and Supply Minister, please. माननीय महोदया, अभी अभी मेरे साथी ने जो बातें सदन के सामने रखी, उन्हें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे मेरे मित्र का सदन में आज पहला ही दिन है और ये सरकार के कामकाज के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तभी सरकार के प्रति अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं। हर खतावार को सूली पर चढ़ा दो, लेकिन जिस पर इल्जाम है उससे भी तो कुछ पूछा जाए। महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने विद्वान साथी तथा पूरे सदन को यह बताना चाहती हूँ कि जिस महंगाई का जिक्र अभी अभी मेरे साथी ने किया, उसे नियंत्रित करने का काम केवल मात्र केंद्र सरकार का ही नहीं, अपितु राज्य सरकार की भी इसमें अहम भूमिका है। और आप तो जानते ही हैं कि मेरे विपक्षी साथी सरकार चला रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने राज्य सरकार के खिलाफ कब अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं? हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं, करना जानते हैं। मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं और किए जाएंगे, लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि कुछ कदम जैसे आपूर्ति में कमी या जमाखोरी केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर है। यह केवल केंद्र सरकार नहीं, बल्कि केंद्र व राज्य दोनों सरकारों को एकजुट होकर इसका सामना करना है। महोदया, महंगाई के कई कारण हैं। पहला, ग्रामीण भारत में बढ़ती हुई आय से मांग बढ़ रही है, जबकि आपूर्ति उस अनुपात में नहीं है। रांता और सीमाएं ही समस्या को बढ़ा रही हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ी हुई कीमतें भी महंगाई बढ़ाने में सहायक हैं। तीसरा, हमारा देश दालों और खाद्य तेलों के मामले में कम पैदावार है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपर्याप्त उपलब्धता जैसे सौर्य संकट का सामना कर रहा है। चौथा, वैश्वीकरण के कारण लोगों को की बदलती दिनचर्या और रहन सहन में भी महंगाई की आग में घी डालने का काम किया है। अतः मुझे आशा है कि सदन सरकार के पक्ष को समझेगा तथा साथ ही राज्य सरकारें भी केंद्र को सहयोग देंगी ताकि हम उस समस्या को सही तरीके से सुलझा सके। धन्यवाद। Yes, Vanshika Tyagi, please. माननीय महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की बात से सहमत हूँ कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि राज्य व केंद्र सरकार दोनों के बीच तालमेल नहीं हो पा रहा है। अब ये तो केंद्र सरकार ही सुनिश्चित करेगी कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों के बीच तालमेल कैसे हो पाएगा। देश की जनता ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर वो कौन सी घट शक्तियां हैं जो सरकार की मंशा को पूरी
कारण सरकार यह कदम नहीं उठाएगी। आखिर आखिर डीजल और पेट्रोल के मूल्य बढ़ाने का असर तो सब चीजों पर होता है। अगर तेल का मूल्य नहीं घटा तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। इस कदम के साथ साथ इस देश की जनता भी यह जनता जानना चाह रही है। महोदय, अन्यथा मैं अविश्वास प्रस्ताव अपना मत रखने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। Yes, Agriculture Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि समस्या को सुलझाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और सरकार इस संदर्भ में राज्य सरकारों तथा अन्य विभागों को समय समय पर दिशा निर्देश जारी कर रही है। कृषि मंत्रालय भी देश की खाद्य आवश्यकताओं से अनभिज्ञ नहीं है। हमने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं तथा कुछ बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिनके बारे में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। चावल गेहूं का बेहतर प्रबंध कराया जाएगा। दालों और सब्जियों का अधिक उत्पादन कराने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने की हमारी योजना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कदम सरकार उठाने जा रही है वह है के विषय में किसानों को प्रशिक्षित करना को ध्यान में रखते हुए तथा भूमि होने के कारण हमें हाइब्रिड की ओर देखना होगा। तीसरा उठाने जा रही है वह है जमाखोरी रोकने के लिए बिचौलियों पर नकेल कसना। जो दोषी है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, केवल पेट्रोल के बढ़ती कीमतें या कम पैदावार ही महंगाई की मुख्य जड़ नहीं है। हमारी किसानों द्वारा मेहनत से उगाए गए अनाज को बिचौलिए जमा कर लेते हैं जिनके कारण भी महंगाई बढ़ रही है। अतः मेरी आशा है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए यह सदन सरकार को अपना समर्थन देगा और इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करेगा। धन्यवाद। Miss Sia, please. अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि सरकार अभी तो योजनाएं बना रही है तथा कदम उठाने की बात कर रही है, जबकि देश की जनता भूख से महंगाई से त्रस्त होकर बिलख रही है और सरकार के कानों पर जू तक नहीं लेंगी। सरकार महंगाई पर चिंता जता रही है, उस पर नियंत्रण करने का आश्वासन दे रही है, परंतु मुझे यह कहते दुख हो रहा है कि ये मात्र कोरे आश्वासन है। ये कुछ नहीं रहा है और महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ी चली जा रही है। क्या यह स्थिति सीधे सरकार की इच्छा शक्ति व ईमानदारी पर सवालिया निशान नहीं लगा रही है? देश क्या जानना चाहता है कि उत्पादन और खपत के बीच संतुलन कायम रखने की उपाय करने की क्या कृषि माद और उपभोक्ता मंत्रालयों की नहीं है? माई है ये मंत्रालय अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाए, तभी तो पहले चीनी, गेहूं, चावल कम कीमत पर नियंत्रण किए जाते हैं और फिर महंगे दामों पर आयात करने पड़ते हैं। ये कैसी विडंबना है? देश की जनता की गाढ़ी कमाई से इकट्ठा किया गया पैसा यूं बर्बाद किया जा रहा है। यह भूल थी, यह साजिश है जो सरकार की इस देश को बता सकती है, परंतु इन परिस्थितियों में हम सरकार को उसके प्रति अविश्वास आयुक्त करते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात में समाप्त करती हूँ। Yes, वित्त मंत्री, please. गम से गमगीन मत हो यारो, गम से गमगीन मत हो यारो, आखिर गमे दर्द की दवा तो यही है। अध्यक्ष महोदया, मैं सदन में उठ रहे इन सवालों के जवाब में ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि सरकार निरंतर महंगाई कम करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस देश के गरीब किसानों और जनता की जितनी भी चिंता विपक्ष को है, उससे कई ज्यादा सरकार में बैठे लोगों को भी है। इस कारण वित्त मंत्रालय ने 60,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की ताकि कम आय वाले किसानों के कर्ज माफ किए जा सके। विपक्ष में बैठे मेरे साथी यूं पूछ रहे थे कि सरकार पेट्रोलियम पदार्थ
साथ ही मैं सदन में को यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि गरीबों को राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय भी जल्द से कोई राहत पैकेज लेकर आएगा, देश की जनता के सामने आएगा। आशा है आप मेरी बातों से सहमत होंगी तो सरकार को अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहने के लिए हमारी सरकार का समर्थन करेंगी और हमें विश्वास जताएंगी। धन्यवाद। Yes, Miss Divyanshi, please. Madam Speaker, I belong to the state which is facing the problem of an activism or even a chairperson. May I invoke a short-hearted and insensitive government to the disable of plight of an Naxalite areas. No one is born of a Naxalite or a terrorist, but the systems of the society forces on to be so. The burden of growth of a Naxalite problem to the present level is due to a terrible practice only. They have followed and implementing bipartisan clearing land forest policies. The depletions of forests have rendered the Adivasis affected areas homeless and have deprived them of their means of a livelihood. The right of education and a scientific development has not reached in this area. Nor has the government to take a pains and draft policies. So the fruits of a scientific advancements may have reached the Adivasis. This has led to continued dependence of Adivasis on a forest for everything and depletions of a forest. Cover has put their very survival on a stake. The Adivasis and the locals have a list in governments and policies. Farming that is why they are feel elevated and are drifting away from the farming that is a wild. The combination of limited mandate means the cabinet is not a clear strategy and there is a clear lack of a coordination. In a defense minister, this is something similar to a view taking the six defense directions in a drawing order. The foreign education minister and air coordinates, bureaucrats and faculty feel the pain according over triggers. Their duty policies have led to insane civil stabbing of arms and also resulted in the loss of the life of a brave soldier. The government machinery has failed. It is misusing investigating and intelligence agency. That intelligence agency have failed to gather the provide information. Otherwise, it would not have resulted in the called very louder of our soldiers. Thus, I am supporting the non-confidence motion. Thank you. Yes, Home Minister, please. It is soothing to learn that our opposition is bothered about plight of Adivasis. Otherwise, they are busy in beating about birds on non-violent issues. My bills are taking off defective mindstand and forest policy. Lack of participation of Adivasis in government and alienation of local from our mainstream. But will they go for self-present because they themselves are responsible for all the mess? It is your government in natural affected areas. They are busy in slogan shouting, barking out of the house. When our government take up abatement in forest land and mining policy. It is very painful to use force against our own fellow countrymen, but antisocial elements or criminals wherever they give those to life and when they take law into their hands are to be related with an iron hand. By this, I am not labeling the Adivasi as criminal or antisocial elements, but I need to say that law will take its own course for people of destructive approaches. The government has come up with new forest policies. The empowered GOM have drafted with new mining policy, where is 26% of mining profit is to be shared with locals. A pressing of mixed hammers and helping hand reduced. A mix of hammer blow for destruction and helping hand for reduction of damage. Yes, opposition leader, please. राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है. राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है. संतरीर भी बोला रात है. ये सुबह सुबह की बात.
अध्यक्ष महोदय, सरकार के विभिन्न मंत्रियों द्वारा इस सदन में जो बातें कही गई हैं, वे एक दूसरे की पीठ थपथपाने के अलावा और कुछ भी नहीं थी। एक तरफ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि देश की जनता भूखमरी की कगार पर खड़ी है। हर रोज कुपोषण से मरने वाले लोगों की खबरें अखबारों में छपती रहती हैं। देश का किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है और दूसरी तरफ देश आंतरिक असुरक्षा के खतरों से जूझ रहा है। कभी नक्सली तो कभी आतंकवादी देश सुरक्षा तंत्र को चकमा देकर अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और तो और देश का स्टॉक एक्सचेंज भी घबराकर सरकार की ओर देखता है। बिचौलिए अनाज का स्टॉक कर लेते हैं और कालाबाजारी करते हैं। सरकार बड़े पैमाने पर अनाज खरीद तो लेती है और उसका उचित प्रबंधन नहीं कर पाती, जिससे लाखों टन अनाज पड़ा पड़ा सड़ रहा है। मैं ये पूछती हूँ कि सरकार इसका उचित प्रबंधन क्यों नहीं करती? क्या ये सरकार की क्षमता से दूर है? क्या ये सरकार पर सवालिया निशान नहीं है? वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए धन चाहिए। धन कहाँ से आएगा? धन ये तो वही बात हुई ना, हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से ढूंढते हैं। शहीद नाम बदलाओ, मेरी तलवार कैसी है? मैं वित्त मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि खेलों पर खर्च करने के लिए तो उनके पास करोड़ों रुपया है, पर गरीबों पर खर्च करने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है। अब सरकार को अपनी कार्य प्रणाली को बदलना ही होगा, वरना जनता उन्हें और बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत गरीब है, अब इनकलाब आने को बता रहे हैं। सबके जोश और तेवर इस जमाने को अपने हाथों में तलवार संभाल ली जाए तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए। महोदय, मैं सरकार के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट हूँ और देश की जनता को इसमें ध्यान रखते हुए समूचे तरह से आग्रह करती हूँ कि वह इस अविश्वास प्रस्ताव को पारित करें। धन्यवाद। Yes, Prime Minister, please. महोदया, आज विपक्ष के द्वारा मेरी सरकार के प्रति जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उस पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। महोदया, आज विपक्ष के द्वारा सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि सरकार महंगाई या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही है। जैसा कि आप सभी ने देखा, मेरे साथी मंत्रियों ने सभी सवालों के समुचित प्रत्युत्तर देकर विपक्ष के साथियों को शांत किया है। मुझे ही नहीं अपितु इस सदन को मेरे इस मंत्री परिषद पर तनिक भी संदेह रह गया होगा। महोदया, मैं कुछ बातों की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगी। सदन मेरी सरकार से सबसे ज्यादा इस बात से खफा है कि हम सभी महंगाई पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मेरे साथी मंत्रियों ने उन्हें स्पष्ट कर ही दिया है कि सरकार द्वारा महंगाई को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य में हमारी क्या क्या योजनाएं हैं। वित्त मंत्री ने भी बताया कि आर्थिक व्यवस्था उन्होंने किस प्रकार से की है ताकि महंगाई को कम करने में हेल्प मिल सके। कृषि मंत्री ने भी बताया कि किस प्रकार से उनका मंत्रालय ठीक प्रकार से अनाज के रखरखाव की व्यवस्था कर रहा है ताकि आने वाले समय में उनके बढ़ते दामों पर भी लगाम लगाई जा सके। महोदया, मैं आप सभी को यकीन दिलाना चाहूंगी कि सरकार कुछ ही समय में महंगाई पर काबू कर लेगी। सरकार विपक्ष ने अध्यक्ष महोदया, एक भी विपक्षी साथी ने हमें ये सुझाव नहीं दिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। इससे अच्छा होता कि वे हमें सुझाव ही बता दे, जिससे हमें ये जानने में भी आसानी होती कि विपक्ष सरकार से आखिर चाहता क्या है। फिर भी मैं उनकी मूल्यवान बातों को ध्यान में रखूंगी। मैं आशा करती हूँ कि विपक्ष मुझ में और मेरी सरकार में पुनः भी अपना विश्वास रखेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री परिषद तथा प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन से असंतुष्ट हूँ तथा अविश्वास प्रस्ताव को सदन में पारित करने की अनुमति चाहती हूँ। Now, non-confidence motion is moved in the House. So, those who are in favor of yes and who are against, please say no. I think the no. Okay. If you want voting, it will be arranged all of you soon. Secretary General, may please make the voting arrangement.
Please. There are buttons on your seat. You can press them to vote in favor or against. Secretary General, please give the tally. This non-confidence motion has lost by 10 votes. So, non-confidence motion has been rejected. Now, the House is adjourned to meet again tomorrow at 10 a.m. Thank you. एंड इस अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में सरकार का साथ देने के लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ। खड़े हो जाओ।